ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਡਰ less than or equal to less than or equal to 4 is abelian group। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੇਸ 1 G is equal to E ਟਰਾਈਵਲੀ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। E ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈਵਲੀ TRIVIA ਟਰਾਈਵਲੀ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ E ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ A, ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ A ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ E ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਟਰਾਈਵਲੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਮਾਨੇ E ਤਾਂ E ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈਵਲੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਸੋ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਆ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ A ਦੀ E ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, E ਦੀ A ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ A ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EAB। ਅਰੇ E ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ EAB ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸੋ EAB ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਵੇ ਸਮ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਆਰਡਰ ਉਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਕਰੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕਰੀ। E ਨੇ E ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਦਿਸ, A ਨੇ E ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਦਿਸ, A ਦਾ A ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ AB ਆ ਗਿਆ। B ਨੇ E ਨਾਲ ਖਾਧੀ, BA ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ B ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੋ 2 ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੈ, ਰੋ ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ A ਸਕੇਅਰ E ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਸਕੇਅਰ BB ਹੋ ਸਕਦਾ, ABE ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ E ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਸਰ ABE ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ B ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ A ਸਕੇਅਰ E ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ABB ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, A ਸਕੇਅਰ B ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ABE ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ EAB ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਨੇ। ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, AB ਨੂੰ ਮੈਂ B ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ B ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ A ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ E ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। B ਆ ਗਿਆ, E ਅਤੇ A ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ,
या तो बी ए इज इक्वल टू ई आ जाऊगा तो बी स्केयर इक्वल टू ए आ जाऊगा, और बी स्केयर इक्वल टू ई आ जाऊगा तो बी ए इक्वल टू बचा कौन ए। सो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। हुण ये जो ए ऑप्शन रिजेक्ट होएगी, क्यों? क्योंकि बी ए इज इक्वल टू ए है। बी ए इनवर्स अगर करा तो बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई, ये नॉट पॉसिबल है। देयरफॉर आ वाली चीज़ ट्रू होगी, क्योंकि मैं इनू पकड़ के नॉट पॉसिबल करता। दूजे नूं तो लोड़ ही नहीं पैंदी है कि जब आ फेल हो गया तो केस ए फेल हो गया, केस हो गया तो आ ट्रू हो गया, आ ट्रू हो गया तो बी ए इज इक्वल टू ई आ गया। इनू मैं 2 कहता। सो 1 and 2 इंप्लाई बी ए इज इक्वल टू ए बी। सो ठीक है जी, मेरा ख्याल है तो कंपोजिशन टेबल ना बड़े आराम नाल ये सिचुएशन समझ आ गई भी आ चीज़ इदा होंदी है तो आ चीज़ इदा नहीं होंदी। ठीक है, सो चलिए जी, चौथा केस है जो कंपोजिशन टेबल ना काफ़ी उलझ जाता। सो कंट्राडिक्शन ना प्रूव करांगे। सो केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 दे विच तुसी की कर लिया, तुसी कह दिता कि ये 4 पॉसीबल एलीमेंट्स लिख लो तुसी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, तो तुसी कह दो कि वो वाले एलीमेंट मतलब ये एबिलियन नहीं है, मतलब एबिलियन नहीं है दी पॉसीबिलिटी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करते हैं तुहाडे कोल। तो आपां इस केस विच आपां की कह रहे हैं तुहाडे कोल, ते मतलब ऑर्डर ऑफ जी आपां 4 ले लैंदे एंड सपोज जी इज़ नॉट एबिलियन। ई आपां आइडेंटिटी ले लिया। ठीक है जी, ई नूं आपां ने आइडेंटिटी ले लिया तो आपां ने कह दिता जी इज़ नॉट एबिलियन। जी नूं एबिलियन कह दिता कि जी एबिलियन नहीं है। ई तो आइडेंटिटी लै ही लिया, जदों ई आइडेंटिटी लै ही लिया तो देयरफॉर जे एबिलियन नहीं हैगा, नॉट एबिलियन, ई आइडेंटिटी है। ठीक है, ई नूं बाद च देखते हैं। जे नॉट एबिलियन है देयरफॉर देयर इज दिस ए कॉमा बी बिलोंग टू जी सच दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। जो ए भी बी ए के बराबर नहीं होगा तो ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। सो ए एंड बी ए आर डिस्टिंक्ट। देयरफॉर ई 1 ए 2 बी 3, ठीक है, ए बी 4 एंड बी ए 5। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया 5। विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्यों? अरे इत्थे तो 4 है। विच इज़ contradiction, therefore elements are A, B and hence abelian। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन सी जी, मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गया होएगा तुहाडे कोल, ते बड़ी सौखा जिहा प्रूफ कीता तुहाडे पास। देखो मैं तुहानूं डे 1 तो एक चीज़ कह रहा, अलजबरे विच जदों तुसी लिखते हो तो लैंगुएज मैटर नहीं करती, तुसी ये मैटर करते हो तुसी किस तरह समझा पा रहे हो, किस बंदे नूं किस तरह समझा पा रहे हो। ठीक है, मैनू लगता मैं सौखा समझा रहा, बट इन केस तुहानूं ऐ लगता है कि ये डिफिकल्ट है कोई भी प्रूफ, मेरा किहड़ा कॉपीराइट है उसनों अपनी बुक विचों कर लो। अगर तुहानूं लगता कि वैसे मैं ये सोचता हूँ कि मैं सौखे तो सौखा ही करा ला तुहाडे कोल, ठीक है जी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ां गैलियन चों देखिया हुई ने, कुछ चीज़ां तुहाडे पास तुहाडी वाली बुक चों भी हुंदियां, कुछ चीज़ां मेरियां पुरानियां किताबां चों है। ठीक है, डेफिनेशन तो हरेक ही मैं गैलियन दी यूज़ करता हूँ ना जो गैलियन च हुंदी हैगी है। ठीक है, सो आपां वर्ल्ड दी बेस्ट बुक लईए तो गैलियन है तुहाडे कोल। ठीक है, और सारियां किताबां इसे चों बणीआं ने। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण आपां देखीए तुहाडे कोल। ठीक है, आगे देखिए तो एक हैगा तुहाडे कोल थ्योरम है। थ्योरम की कहती है ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। सो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। सो सोल्यूशन या प्रूफ, क्योंकि थ्योरम की तरह नहीं आता, क्वेश्चन की तरह भी आ जाता, फिर प्रूफ भी लिखना पै जाता।
सो आप की करिए लेट जी इज़ फाइनाइट, ठीक है, तो ए बिलोंग टू जी, ठीक है, तो जिहड़ा है तुहाडे कोल देयरफॉर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए स्केयर, क्योंकि ए स्केयर ए इंटू ए बन जाएगा, ए क्यूब ए फोर आर आल इन जी, जी फाइनाइट किया उसने, ये रुकने तो चाहिए ही है तुहाडे पास, ਇਹਦਾ मतलब तुसी कह रहे जे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई जाओगे क्लोजर तो चली जाऊगी, मुकनी होनी की, ठीक है, क्योंकि तुसी सिंस जी इज़ फाइनाइट है देयरफॉर दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये रिपीट हो रहे आपस च सेम हैगे ने, सिंस जी इज़ फाइनाइट सो एलिमेंट्स इन वन आर नॉट डिस्टिंक्ट, अरे जे डिस्टिंक्ट हो गए तो इन्फिनिटी तक चले जाने हैं, इसका मतलब रेपिटेशन हो रही है थोड़े पास, ठीक है, सो नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, वी कैन से ए जे इक्वल टू ए आई, एल लिखो एम लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं की थोड़े पास, ठीक है जी, आई और जे इक्वल नहीं है, तो तुसी लेट जे ग्रेटर दैन आई कर लिया, ये विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी है, तुसी को मैं आई वड्डा लेना ले लो, पर जेड़ा वड्डा लोगे ना पावर उधर ले आना, डिवाइड कर दिता, अब जो तुसी डिवाइड कर दिता आई तो जे दोनों फाइनाइट सीगे, क्योंकि पावरां तुसी इनफिनिटी तो लै नहीं सकते, सो जे माइनस आई नू कोई एन कह लिया, सो ए दी पावर एन इज़ इक्वल टू ई, सो एन की है फाइनाइट है, आंसर की आ गया ई, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ फाइनाइट, सो आ तुहाडा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी, सो इस करके तो एक ये नाल ही थोड़ा एक बुक वर्क होएगा, माने तुसी बुक चो कर लेना, वो है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होंदा है, ठीक है जी, बुक विचों पढ़ लोगे कॉन्सैप्ट थोड़े डिवेलप होए हुए ने, तो मैनूं नहीं लगता तुहाडे पास कोई दिक्कत वाली गल आऊगी, सो ये तुसी बुक वर्क करना है, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल एक रिजल्ट होर हैगा, वो भी तुसी बुक वर्क करना, इंडक्शन नाल है, और रिजल्ट ये है कि अगर एक्स इनवर्स ए दी पावर एम होवे तो एक्स इनवर्स ए दी पावर एम इक्वल टू एक्स होंदा है, ये तुहाडा दूजा बुक वर्क है, प्रूफ भी नहीं पढ़ना होया तो कर लियो, वैसे उन्हें इंडक्शन ना कीता होगा, तो इन केस तुहानूं लगे कि मेरी बुक च है नहीं जी, तुहाडी बुक का बुक वर्क हो सकता है, ठीक है, मैसेज कर देना, मैं अपनी बुक चो फोटो खिंच के भेज दूँगा, सो ये दो रिजल्ट तुसी बुक चो याद कर लेने ने जी, थ्योरम नहीं आती, वैसे रिजल्ट तुहानूं पता होना चाहिए, प्रूफ देख लियो, एबस्ट्रैक्टनैस है जी अलजबरे की थोड़ी होर अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। उस तो बाद है इफ़, ये इंपॉर्टेंट है जी, इफ़ ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जी, जी की है जी ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स, ये बराबर होंदा, ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट है, दूजा पार्ट है कि हैंस प्रूव दैट, इस तो की प्रूव करना है, ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ सेम एज ऑर्डर ऑफ बी ए, चाहे हैंस प्रूफ आ जाए चाहे कला प्रूफ करना हो, तो ये चीज़ां आपां नूं जरूरी ने, तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, तो तुसी इस क्वेश्चन ते फोकस करना हैगा, ठीक है जी। क्वेश्चन आवे थ्योरम आवे तुसी देखना तुहाडी बुक च की है, मैंने तो सिर्फ ये है भी आपां नूं प्रूफ आना चाहिए हैगा, सो लो जी आपां की कर लिया तुहाडे पास, आपां इहदा प्रूफ दे रहे हैं, आपां कर लिया लेट ऑर्डर ऑफ ए एम कर लिया एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ही एन कर लिया, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ए दी पावर जो एम रेज करांगे तो ई आऊगा, और एम लीस्ट होना चाहिए LEAST, ठीक है, इस तरह अगर x माइनस ए एक्स ए दी पावर n रेज करांगे तो ई होना चाहिए, इस केस n लीस्ट होना चाहिए, ये दोनों डेफिनेशन लग गई अपने को, ठीक है जी। सो डेफिनेशन लग गई, हुण आपां स्टार्ट करिए क्वेश्चन, आपां ओदा ऑर्डर तो ओदा ऑर्डर बराबर करने ने, बराबर करने ने, मैंने वो सबसेट वाली डेफिनेशन आपां लगा के सैटिंग कर दिए, तो चलो जी हुण आपां की करना है, आपां कंसीडर कर लिया x माइनस ए तो x ए दी पावर असी कैम लै ली,
कंसीडर कर लो, ठीक है। ये एज वी नो कर लो क्योंकि ये रिजल्ट है, ये ना ये बराबर होंगे, ठीक है जी। जो ये बराबर होंगे ये तो रूल हो गया, मैं थोड़ा पिछे बुक वर्क दस्या, इंडक्शन ना प्रूव हो जाएगा, एज कर लो एज दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देयरफॉर हुण इहदी वैल्यू जिहड़ी है ये ई बन गई, देयरफॉर ये एक्स ई बन गया, देयरफॉर ये ई बन गया। हुण एक्स माइनस ए इहदी पावर एम लई ते आंसर बन गया ई। एम तो यदा मतलब की होया, थोड़ा पहला ऑर्डर सी बट थोड़ा इहदा ऑर्डर सीगा जिहड़ा इहदी पावर एम एन लए ते भी आंसर ई आंदा है। हुण एन थोड़ा की सी ऑर्डर, ऑर्डर ही लीस्ट हुंदा है, देयरफॉर तुसी की कहोगे जिहड़ा एम है या तो वड्डा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर ही लीस्ट हुंदा है। ऑर्डर तो इलावा कोई पावर तुहानू ई देगी तो यदा मतलब है तुहाडे पास आह वाली चीज़ हो जाएगी। तुहानू समझ आ गया। हुण अगेन एक्स इनवर्स ए दी पावर एन एक्स, ठीक है, बराबर है एक्स ए एक्स दी पावर एन। इस बार उल्टा करके लिखिया वही फार्मूला, क्योंकि इधरों तोड़ना। इहदी वैल्यू क्वेश्चन दे विच ई सीगी, कित्थों पता लग्या, अरे लिखी हुई है स्टार्टिंग च, आ देखो जे इहदी वैल्यू ई सी तो आ देखो एक्स इनवर्स ए एक्स दी पावर एन इक्वल टू ई। सो इसका मतलब है ए दी पावर एन एक्स आ गया तुहाडे पास ई, ठीक है। अब तुसी जिहड़ा हैगा है अगर एक्स ना मल्टीप्लाई कर देंदे हो तो इधरों एक्स कट जूगा, ठीक है। तो इधर एक्स ना मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही रह गया, इधर ई एक्स आ गया। एक्स ना पोस्ट तो इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर देंगे हो, सो ए दी पावर एन इंटू ई बराबर है ई आ गया। तो अल्टीमेटली ए दी पावर एन इक्वल टू ई आ गया, इन्ना गुणा। अब ए दी पावर एन इज इक्वल टू ई आ गया, बट ए दी पावर एम इज इक्वल टू ई है, पर एम लीस्ट है, ਇਹਦਾ मतलब एम छोटा या एन तो बराबर होगा। सो इसनों असी 1 कह दिता, इसनों असी 2 कह दिता। 1 एंड 2 इंपलाइज एम इज इक्वल टू एन। बड़ा सौखा लगता है, अलजबरे के पेपर ने बस करा देनी है, इस करके जिहड़ा हैगा हरेक चीज़ नूं एनालिटिकली पूरा डिवेलप करने की कोशिश करो, ठीक है जी। उस तो बाद आपां क्या लिखना है, सैकेंड पार्ट च बी ए लिख लिया। बी ए नू ई टाइम्स मैं लिख सकता वा, तुहाडे पास बी ए कोई फर्क तो नहीं पैंदा। ई दी वैल्यू मैं ए इनवर्स ए लिखना, कोई फर्क तो नहीं पैंदा। इनू मैं ए बी लिखना, फर्क तो नहीं पैंदा, ठीक है। अब अगर आ वाली चीज़ हैगी है तुहाडे पास, पिछे की सीगा, पिछे आपां लिखिया सी कि ऑर्डर ऑफ एक्स मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स हुंदा है। माने आ चीज़ सेंटर च सी ते हुण तुसीं देखो आ चीज़ सेंटर च हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। इहदे सेंटर च आ गया, कोई चक्कर नहीं गा तुहाडे पास। इहदा मतलब ए होल्ड करती है तो ये बराबर चाहिए है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी चाहिए है, क्योंकि ये तो होल्ड करती है ना, तो फिर सेंटर सेम होना चाहिए। तो यदा मतलब आ होल्ड करूगी। सो पिछले वाले दे प्रूफ के उत्ते असी क्वेश्चन डिवेलप कर लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन की है जी ग्रुप है, जी ग्रुप है, ए बिलोंग टू जी हैगा, ऑर्डर ऑफ ए एन हैगा, दैन अगर ए दी पावर एम ई आंदा है इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम। हुणे कह के आए हो जे हुण ए दी पावर एम ही आंदा तो फिर ਇਹਦਾ मतलब एम ਵੱਡਾ ही होएगा ना, तो एन एम नू डिवाइड भी पक्का करेगा। सो ये वाली चीज़ आपां ने करनी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ आपां प्रूफ करना है, तो ये रिजल्ट भी आपां ने याद रखना है, रिजल्ट ही बहुत ज़रूरी है। सो लो जी प्रूफ आपां की करिए तुहाडे पास, लैट ए दी पावर एम नू आपां ई ले लिया, ठीक है जी। ए दी पावर एम इफ अगर एम डिवाइड करता अगली बार डिवाइड करता मान लाँगे तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूव की हैगा जी, रिक्वायर्ड टू प्रूव हैगा ए एन डिवाइड्स एम, ठीक है। सो ए दी पावर एम ले लिया बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम,
m इज इक्वल टू ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ n क्यू प्लस r ਹੁੰਦਾ और r ਤੁਹਾਡਾ रिमाइंडर ਹੁੰਦਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ देयरफॉर a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਨੂੰ a ਦੀ ਪਾਵਰ n क्यू प्लस r लिखिया जा सकता। हाँ जी, a ਦੀ ਪਾਵਰ n क्यू ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ r लिखिया जा सकता। हाँ जी ठीक है जी। अब a ਦੀ ਪਾਵਰ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a देखो क्वेश्चन की है, ऑर्डर ऑफ a क्वेश्चन n है तो a ਦੀ पावर n e होएगी। सो e ਦੀ पावर q तो a ਦੀ पावर r, e ਦੀ पावर q तो a ਦੀ पावर r आ गया। ठीक हो गया जी। सो a ਦੀ पावर r आ गया। हुण अगे की करना है तुहाडे पास, अब a ਦੀ पावर m इज इक्वल टू a ਦੀ पावर r, r जिहड़ा है 0 तो छोटा जिहड़ा हैगा या बराबर n तो छोटा हैगा। ठीक है, हुण अगर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये चीज़ कहंदा प्रॉपर है a ਦੀ पावर m, तुसी ना क्या लिखिया, तुसी क्या a ਦੀ पावर m इज इक्वल टू e, जे a ਦੀ पावर m इज इक्वल टू e हैगा तो फिर ये मतलब आ 0 ही पॉज ट्रू ओनली अगर r इज इक्वल टू 0 होएगा, क्योंकि 0 होएगा तो a ਦੀ पावर m इज इक्वल टू e आनी जो कि तुसी शुरू च लैट किया। ठीक है, r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर की होगा m इज इक्वल टू n क्यू, उरे r की वैल्यू 0 आ जू। हुण क्यू इंटीजर n गुणा इंटीजर बराबर m, ये मतलब n डिवाइड्स m। ठीक है जी। उस तो बाद की है कन्वर्स लेट n डिवाइड्स m, देयरफॉर m इज इक्वल टू n इंटू समथिंग क्यू, क्यू इंटीजर है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, देयरफॉर a की पावर m की होगा m की थां ते n क्यू कर दो तुहाडे को। ठीक है जी। सो a की पावर n इंटू क्यू, सो a की पावर n e आ गया तुहाडे को, e की पावर क्यू, सो मुड़ के e ही आ जाएगा। सो शो हो गया जी a की पावर m इज इक्वल टू e। सो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है जी, इन्ना ही कर लो, थैंक यू।